Is Nelly still here? Now he is asking, why is Neely still here? Why is Neely still here? What does it mean? Neely is a girl. He is asking about her कि वो अभी तक यहाँ क्यों है? Hello everyone, welcome back to the channel. So today I have brought a super funny series and the name is The Office. The Office and इसके हर डायलॉग में है बहुत ही ज्यादा कॉमेडी. So आज what we are going to do in this video, I have taken a short clip from The Office and इस पर्टिकुलर क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करूंगी प्लस हिंदी ट्रांसलेशंस भी प्रोवाइड करूंगी. एंड इफ यू थिंक कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. इस वीडियो में अगर आपको इंग्लिश आती भी है स्टिल यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. कैसे? सी you will see that how can you speak English smoothly, fluently, and most importantly with expressions, because expressions plays a great role in your communication skills. So if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is for you. And now, without wasting time, let's just go straight into the scene. And now let's see कि पहला dialogue हमारी इस clip का क्या है. Without wasting time, let's start. Alright, so now let's see that what is the first dialogue over here. Hey, you wanted to see me? Yeah. Okay, so he came and he's asking, hey, you wanted to see me? Hey, you wanted to see me? Now, what does it mean? If I'm just coming to you and मैं बोलूँ आपसे, hey, you wanted to see me? That means कि मेरा मतलब है मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाय क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाय क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तो कभी भी if you want to say कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? क्या तुम मुझे देखना चाहते थे? What can you say in place of that? Hey, you wanted to see me? He wanted to see me. That's it. All right. Now let me just write it in Hindi so that आपको कोई confusion ना रहे. हाँ एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने के बाद I will be making you do the speaking practice. Speaking practice किसकी? For this English dialogue. क्योंकि at last we are improving. Like my intention for this video is just to make you improve your English. That's it. ठीक है? So what was our sentence? Hey, you wanted me to. Hey, you wanted to see me. Means कि I तुम आए तुम मुझसे मिलना चाहते थे. Alright. So hey, you wanted to see me. Hey, you wanted to see me. What does it mean कि हाय तुम मुझसे मिलना चाहते थे. हाय तुम मुझसे मिलना चाहते थे. Got it? आगे देखते हैं. Me? Yeah, I gotta go, David. Then he is saying, yeah, I gotta go, David. Now, David is his name. David उसका नाम है. एंड अब ना ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि जो भी हमारे बहुत लंबे-लंबे सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडियन में नॉर्मली बोलते हैं, हमें पूछना होता है कि क्या कर रहे हो? हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग? या फिर ठीक है. और अगर यही चीज़ हमें ब्रिटिश इंग्लिश में बोलनी हो, देन वो आधे वर्ड्स सबको मिक्स करके दे विल बी सेइंग व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है? व्हाट यू आर डूइंग? इट मीन्स द सेम बट दे जस्ट मिक्स मैच द वर्ड्स एंड वो उसको बहुत शॉर्ट बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देते हैं एंड देन दे स्पीक. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस क्या है? आई गॉट टू गो. ठीक है? आई गॉट टू गो बट जिस तरह से दे स्पीक क्या आई गॉटा गो. आई गॉट अ गो. So just practice with me. I gotta go. I gotta go. Okay. So what is he saying? Yes, I gotta go, David. I gotta go, David. इट मीन्स कि हाँ, मुझे निकलना होगा डेविड. हाँ, मुझे निकलना होगा डेविड. ओके? हाँ, मुझे निकलना होगा डेविड. डेविड इज हिज नेम. ऑलराइट, सो व्हाट इज ही सेइंग? या आई गॉट टू गो डेविड. या आई गॉट टू गो डेविड. एंड व्हाट डज इट मीन कि हाँ, मुझे निकलना होगा डेविड. ओके?
I hope both the sentences are clear to you all. Now let's just come to the third sentence. Why is Nellie still here? Now he is asking, why is Nelly still here? Why is Nelly still here? What does it mean? Nelly is a girl. He is asking about her कि वो अभी तक यहाँ क्यों है? Why is Nelly still here? It means कि Nelly अभी तक यहाँ पर क्यों है? Nelly अभी तक यहाँ पर क्यों है? All right. So Nelly is a name, so मैं इसको हिंदी में नहीं लिखूंगी. Whatever the name is here, I will be writing that in English only. Okay. So Nelly यहाँ पर अभी तक क्यों है? Why is Nelly still here? What does it mean? कि नेली अभी तक यहाँ पर क्यों है? ठीक है, नेली अभी तक यहाँ पर क्यों है? Got it? Only fire Nellie for cold. Then I will make it off. Then he is saying that you can only fire Nelly for a cause. कि तुम नेली को किसी ठोस वजह से ही निकाल सकते हो. Fire means निकालना. So he is saying कि you can only fire Nelly for a cause, which means कि नेली को सिर्फ किसी ठोस वजह से ही निकाल सकते हो. ऐसे ही रैंडमली तुम उसको नहीं निकाल सकते. You need a cause, you need a reason to fire her. So that is the thing what he is explaining him. You can only fire Nelly for a cause कि तुम नेली को किसी ठोस वजह से ही निकाल सकते हो. You can only fire Nelly for a cause. तुम नेली को किसी ठोस वजह से ही निकाल सकते हो. ठीक है. You can only fire Nelly for a cause. तुम नेली को किसी ठोस वजह से ही निकाल सकते हो. Got it? आगे देखते हैं. Then I will make up the call. Okay. So he is saying कि then I'll make up a cause. तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. Then I'll make up a cause. तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. Okay, what he is saying? Then I'll make up a cause. Then I'll make up a cause, which means कि ठीक है, तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. ठीक है? ठीक है. तो फिर मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. Then I'll make up a cause. ठीक है, तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. Got it? Then I'll make up a cause. तो मैं खुद एक वजह बना लेता हूँ. आगे देखते हैं. Alright, आगे देखते हैं. You just told me you were gonna make it up. Okay. Then he's saying that except you just told me you were gonna make it up. Except you just told me you were gonna make it up. What does it mean now? It means कि पर तुमने अभी-अभी मुझसे कहा कि तुम खुद वजह बना दोगे. पर तुमने अभी-अभी मुझसे कहा कि तुम खुद एक वजह बना दोगे. So let me first of all let me just write this one. लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम खुद एक वजह बना रहे हो. Alright. So what is he saying?
Except you just told me you were gonna make it up. Except you just told me you were gonna make it up. लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम खुद एक वजह बना रहे हो. That's it. आगे देखते हैं. She sues, I have to testify again. Okay. After that, he's saying, now if she sues, I have to testify against you. सबसे पहले sues का मतलब होता है कि केस कर देना, ठीक है? एंड टेस्टिफाई का मतलब होता है कि गवाही देना. तो ही इज ट्राइंग टू से दैट अब अगर वो तुम्हारे खिलाफ केस करती है, तो मुझे अब अगर वो तुम्हारे ऊपर केस करती है, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, ठीक है? अब अगर वो तुम्हारे ऊपर केस करती है, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, ठीक है? अब अगर वो केस करती है, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी. ऑलराइट, क्या सेंटेंस है हमारा? नाउ इफ शी सूज आई हैव टू टेस्टिफाई अगेंस्ट यू, व्हिच मींस कि अब अगर वो केस करती है, तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी. अब अगर वो केस करती है, मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, ठीक है? आगे देखते हैं. Don't forget I just told you that. Then he says, then forget I just told you that. Then forget I just told you that. तो फिर भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है. तो फिर भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है, ठीक है? एंड देन इसके रिप्लाई में ही सेज कि कांट, लेकिन मैं नहीं भूल सकता, लेकिन मैं नहीं भूल सकता. तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? देन फॉरगेट व्हाट आई जस्ट सेड. तो भूल जाओ कि मैंने क्या, तो भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा, मैं नहीं भूल सकता, ठीक है? लेट मी जस्ट राइट इट. तो भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा, कान नहीं भूल सकता. ऑलराइट, सो व्हाट इज ही सेइंग? तो भूल जाओ मैंने जो कुछ भी कहा. व्हाट इज, हाउ कैन वी से इट इन इंग्लिश? देन फॉरगेट आई जस्ट टोल्ड यू दैट. देन फॉरगेट आई जस्ट टोल्ड यू दैट. कांट नहीं भूल सकता. गॉट इट? आगे देखते हैं. Can't. The course of the Weintraub. Then he says, I took a course at the Weintraub Memory Academy. The Weintraub Memory Academy. तो Weintraub Memory Academy, this is the name of the academy. वो बोल रहा है कि मैंने Weintraub Memory Academy में एक कोर्स किया था. मैंने Weintraub Memory Academy में एक कोर्स किया था. आगे. Sat next to this woman named Beverly Brook. Then he says कि I sit next to this woman named Beverly Brook. तो वो बता रहा है कि मैं एक औरत के बगल में बैठा था जिसका नाम था बेवर्ली ब्रॉके, ठीक है? तो मैं एक औरत के बगल में बैठा था जिसका नाम था बेवर्ली ब्रॉके. आगे देखते हैं. She had a Greek salad. शी हैड अ ग्रीक सैलड फॉर लंच. उसने लंच के लिए क्या लिया था? शी हैड अ ग्रीक सैलड फॉर लंच का मतलब कि उसने अपने लंच के लिए ग्रीक सैलड लिया था. इससे पहले वाले सेंटेंस मैंने उसमें नहीं लिखे थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी अकेडमीज़ के नेम थे और ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड्स थे वो इंग्लिश में थे. सिंपल एक छोटा-सा सेंटेंस जो भी हिंदी में था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ओके? एंड वो पूरे इंग्लिश के वर्ड्स ही रिपीट करने पड़े. दैट वाज़ द रीज़न आई हैव नॉट रिटन. नाउ हियर द सेंटेंस इज़ शी हैड अ ग्रीक सैलड फॉर लंच. इसका मतलब कि
उसने लंच में ग्रीक तो उसने लंच में ग्रीक सैलेड लिया था। आगे देखते हैं। See? सी व्हाट आई मीन। तो फिर वो कहता है कि समझ आया कि मेरा क्या मतलब है? समझ आया कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है? और तो सी व्हाट आई मीन समझ आया कि मेरा क्या मतलब है या फिर समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ आया कि मेरा क्या मतलब है, ओके? समझ आया कि मेरा क्या मतलब है, लेट्स से इट अगेन। सी व्हाट आई मीन समझ आया कि मेरा क्या मतलब है? आगे देखते हैं। Now I know why Michael hated you so much. देन ही इज़ सेइंग कि नाउ आई नो व्हाई माइकल हेटेड यू सो मच। अब मुझे समझ आया कि माइकल तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करता था। नाउ आई नो दैट व्हाई माइकल हेटेड यू सो मच। अब मुझे समझ आया कि माइकल तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करता था। ठीक है? अब मुझे समझ आया कि माइकल तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करता था। ठीक है? नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई माइकल हेटेड यू सो मच। अब मुझे समझ आया कि माइकल तुमसे इतनी नफ़रत क्यों करता था। ठीक है? आगे देखते हैं। Man. Do you see how the trapeze completely surrounds the wire? सी तो यहाँ पे ही इज सेइंग कि डू यू सी हाउ द ट्रापीज कंप्लीटली सराउंड द वायर्स। तो ट्रापीज इज दिस मटेरियल जो वो दिखा रहे हैं कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि इस वायर को ट्रापीज ने किस तरह से घेर के रखा है। ठीक है, डू यू सी हाउ द ट्रापीज कंप्लीटली सराउंड बाय दिस वायर। व्हाट डज इट मीन कि क्या तुम देख सकते हो कि कैसे ट्रापीज ने पूरे वायर को घेर के रखा हुआ है। ठीक है, क्या तुम्हें दिख रहा है कि कैसे ट्रापीज ने पूरे वायर को घेर के रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। That means it is literally impossible for anyone to fall off. Then he is saying that means it is literally impossible for anyone to fall off. That means it is literally impossible for anyone to fall off. And इसका मतलब है कि जिसका मतलब किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है गिरना। ठीक है, तो किसी के लिए भी मतलब लगभग नामुमकिन है गिर जाना। ओके, so that means it is literally impossible for anyone to fall off. इसका मतलब किसी के लिए लगभग नामुमकिन है गिरना। Okay, that means it is literally impossible for anyone to fall off. That means it is literally impossible for anyone to fall off. ठीक है, एंड इसका मतलब कि इसका मतलब है कि किसी के लिए भी ये लगभग नामुमकिन है कि वो गिरे। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। Alright, so that's it for today's video. And if you want to see the next part for the same clip, do let me know in the comment sections.
Plus, you can also let me know that which series do you want to do the next. Either they can be like Hollywood, Bollywood, any one of your choice. I am ready to pick it up and provide you the translation. So you just have to comment it down, whatever you need to watch. If you need the grammar videos, I'll be providing you those. If you need the vocabulary videos, I am ready to provide even those. So yeah, if you like this video, share it with your friends. Stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.